Hello students and welcome back. Welcome back after your summer break and this is your computer class and now in today's computer class what we are going to do. देखो we have completed chapter 1. Chapter 1 we have completed, we have covered almost all the things and all the topics and we have completed the question answer exercises also. These all things we have completed. Now the next thing is tables in Microsoft Access. Next chapter is tables in Microsoft Access, more feature in MS Access, query and reports in MS Access. These all things we have to study today. Now let us open page number 12 and let us see what are the topic that we have to read today. Now this is the topic for the day. Okay? And the topic is Microsoft Access. Tables in Microsoft Access. Okay class. But I think before moving toward your own book, let us see what are the topics that you have already seen in class 7. ठीक है, क्लास 7th में आपने क्या किया था? क्लास 7th में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा था. तो चलो एक जल्दी से एक रिकॉल ले लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी एक्सेस के बारे में जो कि आपने पढ़ी थी अपने क्लास 7th में. ठीक है, उससे क्या होगा? इट विल हेल्प अस टू get the access of the thing. Okay, so here it is introduction to the MS Access. Let us see what is MS Access and first of all let's take a recall of the things. ठीक है, तो Microsoft Access is what? Microsoft Access is a powerful database. Microsoft Access is a powerful database program for creating database to store information. And you can use MS Access to create, retrieve and manage large or small collection of information. Microsoft Access is what? It's a powerful database program for creating database to store the information. Microsoft Access से क्या देखो क्या database program means what? Database क्या होता है? चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे आपके स्कूल में काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपके स्कूल में सपोज करो कि 1600 करीब बच्चे हैं या कुछ टीचर्स हैं, कुछ और स्टाफ्स हैं, ग्रुप डी स्टाफ, इस तरह करके कई सारी चीज़ें हैं. ठीक है, अब ये बताओ कैसे पता चलता है कि किस बच्चे ने फीस सबमिट की कि नहीं, किस बच्चे का नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, बच्चे की एडमिशन आईडी क्या है. ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें कुछ ऐसी जरूरी इंफॉर्मेशन है जो कि स्कूल के पास होनी चाहिए और ये स्कूल के पास है भी. तो डेटाबेस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आपने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ पावरफुल database program for creating database to store information. It is used to store information. Microsoft Access is a powerful database and it is used to store information. इससे इसमें क्या करते हैं हम? information क्या करते हैं? We store information in this. Now next is what? You can use MS Access to create, retrieve and manage large or small collection of information. You can use MS Access to retrieve large, small और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, नाउ आप क्या क्या कर सकते हो डेटाबेस में? आप अपना खुद का एक DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका है उसमें आप क्या कर सकते हो? अपने इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो. मैनेज मीन्स क्या? सपोज करो कि कोई बच्चा, ऐसा तो आप लोग आर्मी स्कूल में हो, आपको पता है कि यहाँ पे ट्रांसफर केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बच्चे आते जाते रहते हैं. तो जब कोई बच्चा चला गया तो जरूरी है ना कि उसका नेम स्ट्रक ऑफ हो जाए इस स्कूल के डेटाबेस से. तो ऐसा होता है, इस स्कूल के डेटाबेस से किसी का नेम स्ट्रक ऑफ करना है तो ये भी काम क्या होता है. ठीक है, नाउ MS Access टू क्रिएट द, अब देखो वहां पे जरूरी है कि बच्चे का नाम क्या किया था? स्ट्रक ऑफ किया था. तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इट इज यूज टू मैनेज लार्ज और स्मॉल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. लार्ज और स्मॉल मतलब इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं? यहाँ पे कलेक्ट करके रखते हैं. नाउ
In manual database, you might record data on paper and store in a filing cabinet. Database software like MS Excel is a software that allows you to create and manage a database. देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यही है कि मैनुअल डेटाबेस की जब हम बात करते हैं, when we talk about manual database, when we talk about manual database, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम बात करते हैं मैनुअल डेटाबेस की, तो मैनुअल डेटाबेस में जैसे क्या होता है, आप मान लो जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे तो तब भी तो स्कूल्स तो तब भी होते थे, तो लोग क्या करते थे, फिर उस टाइम लोग क्या करते थे, वहाँ पे लोग क्या क्या करते थे उस टाइम, पेपर पेन पे पूरे स्कूल के इंफॉर्मेशन वो लोग लिखते थे, रजिस्टर्स बनती थी, उन रजिस्टर को संभाल के रखा जाता था, ठीक है। बट अभी क्या है, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम क्या था कि सपोज करो कि कोई टीचर या कोई बच्चा क्या किया, स्कूल छोड़ के गया, अगर ऐसा हुआ कि कोई टीचर या कोई बच्चा स्कूल को किसी कारण से लेफ्ट कर रहा है, तो वहां पे क्या होता था, काटना पड़ता था चीजों को, क्या करना पड़ता था, कट लगाना पड़ता था, जो कि इतना नीट नहीं था। लेकिन अब डेटाबेस के आने के साथ, कंप्यूटर में डेटाबेस के आने के साथ क्या होता है, कंप्यूटर में डेटाबेस के आने के साथ क्या करते हैं हम, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कट करने की जरूरत नहीं, हमारा वर्क क्लीन रहेगा, हमें जब भी चाहिए वो इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। ओके नाउ, अच्छा, नाउ moving ahead toward the next thing. Now the next thing is what, after this, next is relational database. What is relational database? Let's talk about the relational database. MS Access creates relational database that contain multiple table with link between them. जैसे होता क्या है ना, मल्टीपल टेबल रहेगा, उसके वो और वो सारे टेबल एक दूसरे से क्या कर रहते हैं, वो एक सारे टेबल एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, ठीक है, वो सारे टेबल एक दूसरे से क्या रहते हैं बेटा, वो एक सारे टेबल एक दूसरे से लिंक रहते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, वी कॉल देम रिलेशनल डेटाबेस, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक वन टेबल फॉर कस्टमर दैट विल स्टोर कस्टमर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अनदर टेबल फॉर ऑर्डर दैट will store information about the order place. Each customer in the customer table has a unique ID and each order in the order table reference on the specific customer ID. कहने का मतलब क्या कि अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि दो अलग अलग टेबल बनाएंगे, एक टेबल में ये क्या रख रहे हैं, एक टेबल में ये सिर्फ कस्टमर की आईडी रख रहे हैं, मतलब कस्टमर का सारा कॉन्टैक्ट रख रहे हैं। सपोज करो कोई फर्नीचर की दुकान है, वहां पे इन्होंने एक में सिर्फ कस्टमर का कॉन्टैक्ट इन्फो रखा हुआ है। अब उन कस्टमर ने कौन कौन सी चीजें खरीदी हैं, ठीक है, उन कस्टमर ने कौन कौन सी चीजें खरीदी है, इसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, इसके लिए उन्होंने एक दूसरा क्या लिया हुआ है, इसके लिए उन्होंने एक दूसरा टेबल क्रिएट किया हुआ है, जहां पे क्या है, ऑर्डर्स का। अब हर एक कस्टमर ने कुछ ना कुछ तो खरीदा होगा, हर कस्टमर ने, मान लो एक कस्टमर ने चेयर खरीदी, तो उस चेयर के मॉडल नंबर के साथ उस कस्टमर का भी मॉडल नंबर होता है। देखो इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप अगर कभी कोई मिस्ट्री सीरीज या क्राइम पेट्रोल वगैरह देखोगे, तो उसमें आप देखते हो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ज्वेलरी शॉप में जाती है और पूछती है कि इसने इसको दे फोटो दिखा के कि क्या इसको देखा है, वो बोलता है हाँ देखा या नहीं देखा, तो इसने क्या खरीदा, तो वो क्या करते हैं, अपने डेटाबेस में सर्च करते हैं और वो बता देते हैं कि हाँ इसने गोल्ड की चेन खरीदी है, उसने सोफा खरीदा है, टेलीविजन खरीदा, तो उसने हमारे यहाँ से एक मोबाइल शॉप खरीदी है, आई मीन मोबाइल खरीदी है। तो ये सारी चीजें क्या है, डेटाबेस की मदद से हम ये सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं, फाइन। तो ये होता है डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे दो टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट रिलेशनल डेटाबेस। जहाँ पे दो टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, वी कॉल इट रिलेशनल डेटाबेस, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट रिलेशनल डेटाबेस। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब आगे क्या है, कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस। नेक्स्ट इज व्हाट, कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस। अगली चीज जो हमने करनी है वो है एमएस एक्सेस की कंपोनेंट। लेट अस स्टार्ट। देखो कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस में सबसे पहले है टेबल, रिकॉर्ड्स एंड फील्ड।
Okay class. Now table records and field. So in MS Access, a database consists of a collection of tables organized in row and column. MS Access में क्या होता है, डेटाबेस होता है जिसमें क्या होता है, टेबल होती है जो कि रो एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज्ड होती है. अब देखो ऐसा आपने पता है कहाँ देखा है, जैसे आपका MS Excel होता है, समथिंग लाइक दैट. जिस तरह का आपका MS Excel होता है, कुछ उसी तरह का यहाँ पे बात होती है MS Access में भी. ना अब यहाँ पे 3 डिफरेंट टर्म है. पहला हो गया टेबल, दूसरा हो गया रिकॉर्ड एंड द थर्ड वन हियर इज फील्ड. टेबल, रिकॉर्ड एंड फील्ड. टेबल, रिकॉर्ड एंड फील्ड. अब व्हाट इज टेबल, रिकॉर्ड एंड फील्ड. देखो टेबल क्या है, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं, कई सारे टेबल्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम. A record is row in a table. उस देखो देखो यहाँ पे कोई ओके, यहाँ पे हमें एक टेबल नजर आ रहा है, ठीक है. तो ये जो पूरा है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ टेबल. दिस होल इज व्हाट, दिस होल इज अ टेबल. नाउ इन दिस होल टेबल, ओके, इन दिस होल टेबल व्हाट इज द थिंग. अब अगला जो टॉपिक हमारा रिकॉर्ड. तो ये जो एक रो है इसकी, ये क्या होती है, रिकॉर्ड होती है. ये एक एक जो रो है वो इसकी अलग अलग क्या है, रिकॉर्ड है. एंड उसके बाद रिकॉर्ड के बाद जो अगला टॉपिक क्या है, फील्ड. एंड व्हाट इज फील्ड, अ फील्ड इज अ कॉलम. ध्यान से समझो, रो इज अ रो. A record is a row in a table that contain information about the given person. Field is a column in a table contain specific piece of information within a record. It is the smallest unit of data of information. ठीक है, सबसे छोटी जो information होती है वो क्या होती है, field होती है. Okay. Now next is data sheet and form. ईच टेबल अपीयर एज अ स्प्रेडशीट ग्रिड. देखो जैसे कि मैंने बताया कि एक्सेल की तरह अपीयर होता है, एक्सेल जिस तरह से अपीयर होता है उसी तरह से क्या होता है, ईच टेबल अपीयर एज अ स्प्रेडशीट ग्रिड कॉल द डेटा शीट. उसे हम क्या कहते हैं, डेटा शीट कहते हैं. मतलब ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस होल इज व्हाट, दिस होल इज अ डेटा शीट. इसी को हम क्या कहते हैं, ये पूरा एक शीट आती है, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट डेटा शीट. You can type into data sheet. You can create forms which are like dialog boxes that prompt for field entries to make data entry more convenient. ठीक है, you can create forms which are like dialog boxes that prompt for field entries to make data entry more convenient. ठीक है, डेटा एंट्री को ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या होता है, यू कैन क्रिएट फॉर्म्स जहाँ पे क्या होता है, डायलॉग बॉक्सेस होते हैं फील्ड एंट्रीज के लिए. फाइन क्लास, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर. ओके क्लास, तो यहाँ पे देखो एक जो इमेज है हमारे पास, इस इमेज में हम देखेंगे डेटा का हम यहाँ पे देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर. ठीक है, टेबल स्ट्रक्चर में जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है. तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा, मतलब यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल से पिक्चर से समझाने की कोशिश की है कि डेटाबेस का टेबल कैसा होता है. ठीक है, तो अभी आपने देखा कि डेटाबेस में क्या होता है, जो टेबल होता है, तो मान लो टेबल 1 2 3 4, यहाँ पे इन्होंने मान लो टेबल 3 की बात कर रहे हैं. तो ये जो वर्टिकल सेक्शन है, द हाईलाइटेड वर्टिकल सेट्स ऑफ 4 सेल इज कॉल्ड कॉलम. दिस इज कॉल्ड द कॉलम. दिस इज कॉल्ड एज द कॉलम. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट कॉलम. जो वर्टिकल सेक्शन है हमारे टेबल का, दिस होल इज कॉलम, दिस होल इज रो. ठीक है, और यहाँ पे ये जो C1 C2 C3 C4 दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉलम नेम. ये क्या है, कॉलम नेम है. तो आपको ध्यान देना है कि वर्टिकल सेक्शन जो होता है, वर्टिकल सेक्शन क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन इज कॉलम एंड द हॉरिजॉन्टल सेक्शन इज रो. Vertical section is column and the horizontal section is what, horizontal section is row. Okay.
नाउ ये समझ में आ गया। नाउ लेट अस मूव बैक टू अवर बुक। अभी देखो यहाँ पे हमने देखा टेबल रिकॉर्ड्स एंड फील्ड, नेक्स्ट इज डेटा डेट शीट एंड फॉर्म्स। अभी है फिल्टर एंड क्वेरीज। यू कैन फिल्टर अ टेबल टू शो ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स। मतलब मान लीजिए कि किसी बच्चे के बारे में आपको सिर्फ नहीं, मान लीजिए क्लास 7th A के बच्चों का आपको सिर्फ एडमिशन नंबर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उनके फादर्स नेम या बाकी और कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि उनका सिर्फ फादर्स नेम, मुझे सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, एडमिशन नंबर चाहिए किसी काम से। तो यू कैन फिल्टर अ टेबल टू शो ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स एंड फील्ड। कुछ रिकॉर्ड कुछ फील्ड ही शो करने के लिए, मतलब मुझे खाली सपोज मुझे सिर्फ चाहिए कि बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो मैं बाकी सारी फील्ड जो होती है, वेदर इट इज बर्थ डेट या एड्रेस या कॉन्टैक्ट इन्फो, इनको मैं क्या कर दूंगी, हाइड कर दूंगी। You can also create a query which is like a saved filter. You can also create a query which is like a saved filter. Queries also enable you to combine data from multiple related table. Queries क्या करती है? Queries also enables you to combine data from multiple related table into a single data sheet or डेटा शीट ऑफ रिजल्ट। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करके आप एक सिंगल डेटाबेस में डाल दो। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अभी इतनी बात समझ में आ गई, चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट प्रेजेंट डेटा फ्रॉम टेबल एंड क्वेरीज इन एन अट्रैक्टिव फॉर्मेट with complete title and with complete the title, header, footer and graphic। इन सभी के साथ आपको क्या होता है, जो आपकी रिपोर्ट आती, मतलब आपने टेबल बना लिया, अब वो टेबल आपको किसी को सेंड करना है। मान लो वो टेबल आपको मुझे सेंड करना है, तो आप उस टेबल को रॉ फॉर्म में नहीं सेंड करना चाह रहे हो। आप क्या चाह रहे हो कि वो टेबल आप कैसे सेंड करो, वो टेबल आप ब्यूटीफाई करके सेंड करो। वो टेबल आप चाह रहे हो कि भाई मैं सिंपल वो टेबल ना सेंड करके मैं उस टेबल को थोड़ा ब्यूटीफाई करके सेंड करूँ। सो हाउ यू विल डू इट? To beautify the table, what you will do to beautify the table, you will what you will do, ब्यूटीफाई करना है अगर आपको टेबल को, तो आपने क्या करोगे, आप क्या करोगे उसको, आप उसमें हेडर फुटर और ग्राफिक्स वगैरह डाल के करोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिपोर्ट। वी कॉल इट एज अ कंप्लीट रिपोर्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें थी जो कि हमने डेटाबेस के बारे में समझा। टेबल रिकॉर्ड्स एंड फील्ड, डेटा डेट शीट एंड फॉर्म्स, फिल्टर एंड क्वेरीज, रिपोर्ट्स, इतनी सारी चीजें हमने क्या की, डेट शीट एंड फॉर्म्स के बारे में हमने क्या किया, पढ़ा। Now moving ahead, moving toward the next thing, ठीक है। Okay, now class, now the next topic is starting access। कैसे access को हम क्या करते हैं, start करते हैं। Now you can start Microsoft Access 2010 to create or open a database file। तो easy है, पहले start all program Microsoft Office and Microsoft Office 2010, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले you will click on the start button। After start button you will click on all programs, then after clicking on the all program click on Microsoft Office, and after clicking on Microsoft Office click on Microsoft Access 2010। next is what, click on Microsoft Access 2010। so this is how you will, what you will do, this is how you can open the, start the Microsoft Access। and when you will open something like this picture will, you will get this type of picture in front of you। Okay class, now let us try to open Microsoft Access। so I'm going to open Microsoft Access in my laptop। देखो, I have gone on start button, then I will click on search, and search में जाके what I will do, search पे जाके I will click on access, I will click on, देखो click करते ही I have got access here। okay, so I will click on open and I'll get it।
Okay class, so let us see how we can start the MS Access. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात की गई है आपकी बुक में भी कि first of all we have to click on start button, then after clicking on the start button you have to click on all programs, then Microsoft Office and then Microsoft Access 2010. इतने बटन्स पे क्लिक करना है, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, इतने सारे बटन्स पे आप क्लिक करोगे एंड देन गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्क्रीन विल अपीयर. व्हाट विच स्क्रीन विल अपीयर? गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्क्रीन विल अपीयर. चलो लेट अस सी. अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर आई विल क्लिक, सबसे पहले हमें कहाँ क्लिक करना है? वी हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. यहाँ पे जो विंडोज टैब है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे. ठीक है, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती चल रही हूँ. सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया. ठीक है, बट नाउ इंस्टेड ऑफ अभी देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे यहाँ पे क्लिक करते ही देखो एक चीज जो आप देख पाओगे वो ये कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेरे क्लिक करते ही देखो यहाँ पे आपको एक्सेस की स्क्रीन नजर आएगी. यहाँ पे आपको एक्सेस की स्क्रीन क्या होगी? नजर आएगी. अभी क्या करना है? जब यहाँ पे मेरे क्लिक करते ही एक्सेस की नजर आ रही है तो हमें क्या करना है? वी विल क्लिक ऑन एक्सेस. ठीक है, एक्सेस पे यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी विल क्लिक ऑन इट. इट विल टेक सम टाइम टू गेट ओपन. ठीक है, यहाँ पे वो क्या करेगा? इट विल टेक टाइम टू गेट ओपन और एक्सेस हमारी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा. देखो जैसे ही हमने किया यहाँ पे एक स्क्रीन आ गई गेटिंग स्टार्टेड विद एमएस एक्सेस. ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीन आ गई गेटिंग स्टार्टेड विद एमएस एक्सेस. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है. फर्स्ट इज न्यू, द नेक्स्ट इज न्यू, सॉरी फर्स्ट इज होम, द नेक्स्ट इज न्यू एंड द नेक्स्ट वन इज ओपन. ये तीन स्क्रीन हमारे सामने यहाँ पे आ गई है. तो अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वी हैव टू क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस, या तो हम एसेट ट्रैकिंग और भी कई सारी चीजें हैं, इवेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, इस तरह से कई सारी चीजों पे क्लिक कर सकते हैं. बट वी हैव टू क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस. हम क्या करेंगे? ब्लैंक डेटाबेस पे हम क्या करेंगे? वी विल क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस. ओके ओके, so once we will click here on blank database. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? आप ब्लैंक डेटाबेस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सी ऐसा एक ब्लैंक डेटाबेस के नाम का एक इस तरह का एक पॉपअप, इस तरह का एक पॉपअप हमारी स्क्रीन पे आएगा. ठीक है, तो अब क्या करना है? यहाँ पे देखो, इफ यू वांट यू कैन चेंज द नेम ऑफ दिस डेटाबेस आल्सो. इफ यू वांट यू कैन चेंज द नेम ऑफ द डेटाबेस आल्सो. इस डेटाबेस का आप क्या कर सकते हो? नेम आप चेंज करा सकते हो. ठीक है, सपोज अगर इसका नेम मैंने चेंज कर दिया, सपोज इसका नेम मैंने कर दिया क्लास 8. ठीक है, इसका नेम मैंने चेंज करके क्लास 8 कर दिया. ठीक है, एंड देन व्हेन आई विल क्लिक ऑन क्रिएट बटन, वो क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा. एक स्क्रीन क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, ओके क्लास, नाउ लेट अस मूव बैक टू योर बुक एंड लेट अस सी व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कवर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस. ब्लैंक डेटाबेस किस तरह से हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले क्या है? यू कैन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एंड फिल डेटा इन इट. ठीक है, न्यू डेटाबेस क्रिएट करके आप इसमें क्या कर सकते हो? डेटा फिल कर सकते हो. देखो सबसे पहले अभी मैंने आपको दिखाया कि जैसे ही आप एक्सेस ओपन करोगे, जैसे ही आप एक्सेस ओपन करोगे, ठीक है, कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी. ठीक है, उसके बाद ये एक तरह की क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ बैक स्टेज व्यू. बैक स्टेज व्यू है. नाउ यू कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस और ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल. देखो यहाँ पे ओपन का भी ऑप्शन था जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो एग्जिस्टिंग फाइल. रुको मैं दिखा रही हूँ आपको. Here you can also, रुको let me cross it. एंड यहाँ पे देखो यू हैव ऑप्शन ऑफ ओपन आल्सो. यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? फाइल को कोई मतलब कोई पुरानी फाइल है, सो यू कैन ओपन दैट फाइल आल्सो. ऑल्सो यू कैन व्हाट यू कैन डू, उसको ओपन करने के साथ आप क्या कर सकते हो? या आप एक ब्लैंक डेटाबेस, एक नई फाइल भी तैयार कर सकते हो. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग. ओके, नाउ यहाँ पे क्या है? नाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस. ठीक है,
Okay. Creating a blank database. So you can click on the blank database option, then type the name of the database. Access automatically assign ACCDB access database extension to all file. ठीक है, वो अपने आप अपना extension लगा देता है. And then you have to click on create button. ठीक है, इतने के बाद what you have to do, you have to click on the create button. अच्छा ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या था कि डेटाबेस में सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, क्लिक किया स्टार्ट बटन पे, देन क्लिक किया ऑल प्रोग्राम्स पे. आफ्टर क्लिकिंग ऑन ऑल प्रोग्राम्स यू हैव क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन ऑल प्रोग्राम एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010. ठीक है, ओके. उसके बाद क्या हुआ, वंस यू आर डन विद दिस, देन अ बैक स्टेज व्यू अपीयर्स. एक बैक स्टेज व्यू आया, उस बैक स्टेज व्यू में आपने क्या किया, बैक स्टेज व्यू जो आता है उसके बाद वहां पे आपने, या इफ यू वांट, वहां पे इफ यू वांट यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, नई डॉक्यूमेंट को आप क्रिएट कर सकते हो, या आप कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को भी क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो. मतलब कोई डॉक्यूमेंट अगर पहले से ही आपके लैपटॉप या आपके सिस्टम में पहले से कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आप चाह रहे हो कि यू वांट टू वर्क ऑन दैट डॉक्यूमेंट, सो यू कैन ओपन दैट आल्सो. ठीक है, अब जैसे ही आप ओपन करते हो, एक्सेस क्या करता है, एक्सेस क्या करता है, उसको एक एक्सटेंशन देता है. अगर आप एक नया फाइल क्रिएट कर रहे हो तो एक्सेस उसे अपने तरफ से ही बाय डिफॉल्ट एक एक्सटेंशन देता है, and that by default extension is ACCDB. ACCDB is what? ACCDB is the uh, by default extension. By default extension क्या है, ACCDB. ACCDB is the by default extension. Okay. Now moving ahead. अभी अगला क्या, access create a new blank database and open a new table. The name of the database appears, the name of the database would happen, the name of the database appears in the title bar. Now you can create your own table by entering record in it. अभी आप क्या कर सकते हो, you can create your own table क्या करके, उसमें record enter करके. The navigation pane display database object that you create such as table, forms, queries and report. अच्छा ठीक है, अभी देखो नेविगेशन पेन क्या होता है. यहाँ पे जो नेविगेशन पेन है, यहाँ पे आपको क्या शो करता है, यहाँ पे ये शो करते हैं आपको टेबल, फॉर्म्स, क्वेरीज और रिपोर्ट जो होती हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं यहाँ पे शो होती हैं. Fine. Now let us see update your knowledge. Database management system is a software that help us to enter, organize, retrieve, modify, store and sort data in a database. जैसे MS Access is a what? It's a database programming system. ये क्या है, ये एक database programming system है. ठीक है. Now, okay. Now see, when you create a new database, whenever you will create a new database using a template, the database include pre-built tables and form which you fill with your own data. ठीक है, प्री बिल्ड टेबल, जब आप टेम्पलेट का यूज करते हो तो वो आपको एक फॉर्मेट सा आपके स्क्रीन पे देता है, और उस फॉर्मेट की मदद से आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्मेट की मदद से आप उसमें क्या करते हो, उसमें चीजें भरते हो. जैसे कि मान लो लेटर राइटिंग के लिए मुझे एक फॉर्मेट मिलता है, तो उस फॉर्मेट को मैं अपना डॉक्यूमेंट उसी तरह से बनाऊंगी. ओके क्लास, तो क्लास, आज की क्लास में डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देखा हमने. ठीक है, कल की क्लास में हम एमएस एक्सेस की बाकी चीजें जैसे क्रिएटिंग अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अंडरस्टैंडिंग द एक्सेस विंडो, ये सारी चीजें हम करेंगे. ठीक है, ओके क्लास. So class, this is it for today, and now ma'am will meet you in the next class.